Hello, friends. I'm Harshit Sharma. I have joined CDA Journey as the faculty for CAPF Paper 2 classes. I'll be taking Paper 2 classes for the upcoming batch launched by CDA Journey. If I talk about myself, I have secured All India Rank 26 in UPSC CAPF Assistant Commandant 2024 exam. This was my first attempt, and I have been able to clear it in my first attempt only. If we talk about my background, so मेरे father army में थे. He served in the army for about 38 years, and मेरी schooling भी सारी army school से ही हुई है. And my graduation was in humanities. I did BA, plain BA, and my subjects were history, geography, and political science. And if we talk about my journey related to competitive exams, so मेरा वो competitive exams का जो सफर था वो start हो गया था around after my class 12th only. I always wanted to join the army, and or we can say I always wanted to join uniformed services, whether it is police or army. All the related stuff I was inclined for. So I started preparing for NDA, and I was recommended thrice. I have been recommended thrice to join army, twice for the NDA, and one time for technical entry scheme OTA gaya, that is. So I was recommended thrice, but I couldn't join due to certain reasons. Then I shifted my focus to other graduation level exams, and uske liye फिर I switched my subjects from maths to humanities, because to an extent humanities से ज़्यादा फायदा होता है इन ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम जो इंडिया में होते हैं. सो I started preparing for those graduation level exams, and मेरा जो जर्नी रही टू सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 26 इन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, उस बीच में मैंने और भी कई एग्जाम्स क्लियर करे हैं. जैसे SSC CPO जो सब इंस्पेक्टर होता है वो भी मेरा क्लियर हुआ था. उसमें मैंने मेडिकल स्किप कर दिया था बिकॉज फाइनल रिजल्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट वो आ गया था. सो मैं सीट खराब नहीं करना चाहता था. एंड सेकेंड थिंग, आई ऑल्सो क्लियर्ड CSIR जो होता है अपना, उसमें सेक्शनल ऑफिसर का एग्जाम था. 13 years बाद वो वैकेंसी आई थी, एंड आई गेव इट, आई क्लियर्ड इट, बट स्टिल मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज आई वॉज मोर इंक्लाइंड टवर्ड्स द यूनिफॉर्म सर्विसेज. एंड आई ऑल्सो क्लियर्ड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम दिस ईयर. दिस वॉज माई सेकेंड attempt in that, and gave mains also for civil services, and I am awaiting the result for it. So this was my journey related to exams and all the achievements of mine. So coming on to the CAPF Assistant Commandant exam, I would firstly like to share my score and all the phases of the exam. In paper 1, I was I scored 125 marks. In paper 2, I scored 102. And in the interview, I scored 120 out of 150. 120 marks, I would say these are among the top 3 or top 4 highest marks in India in the assistant commandant exam. So I would say कि बहुत बैलेंस मेरा स्कोर रहा हर फेज में. ऐसा कहा जाता है कि if you want to make it to the final merit list in the CAPF exam, then you have to appear like you have to give your best or above average in any of the two parts of the exam. Total 3 parts होते हैं, paper 1, paper 2 and interview. So कि उनमें से किसी दो में you have to score above average. If you are not able to do that, then the chances get slimmer. So मेरा तो तीनों में ही above average मैं मानता हूँ अपना score. And उसके लिए the strategy which I followed was around different for paper 1, for paper 2 and for interview also it was different. For paper 1 जैसा सब लोग करते हैं, if we talk about paper 1, paper 1 में जैसा सब लोग करते हैं कि they go about standard books, तो मैंने भी वैसे ही किया था because that is the proven strategy of all the toppers of previous years. So मेरा भी वही था कि firstly मैंने जो basic NCERTs थी, not from 6th, from of 10th and 11th 12th, जो basic NCERTs हैं of all the major subjects of humanities like polity and आपका history
एंड इकोनॉमिक्स, तो ये मेरा मैंने पहले कवर किया था, आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो फ्रॉम अपना एनसीईआरटीज। मिनिमम मैंने 3 रीडिंग्स एनसीईआरटी की करी हैं, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। नोट्स बनाना ऑफ एनसीईआरटी इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट इफ यू हैव टाइम देन यू कैन ऑलवेज make notes from NCERTs also. And if we talk about then what I did after NCERTs, I switched to standard books. अब standard books वही हैं जो सब कर रहे हैं. Like for आपका polity, I followed लक्ष्मीकांत, selected उसमें जो इंडेक्स है उसके selected chapters मैंने किए. गवर्नेंस में मैंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करी थी फॉर CAPF एग्जाम, बिकॉज द syllabus is that only. And like the trend is that only, that they ask till constitutional and non-constitutional bodies only. And if we talk about modern history, then मैंने spectrum किए थे. That too I restricted myself till post independence. मैंने post independence नहीं किया for CAPF exam. I did it for my civil services, but मैंने इसके लिए नहीं किया था. And it is a proven thing that the trend has been like that. They don't ask about post independence in UPSC CAPF exam, and if आता है तो 1-2 क्वेश्चन है उसमें अपना ज़्यादा मैंने अपना टाइम नहीं दिया. तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रैटेजी. देन कमिंग ऑन टू एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने RS शर्मा आफ्टर NCERTs करी थी, एंड उसकी 2 रीडिंग्स, उसके बाद मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे. जो मेजर थीम्स हैं लाइक इंडस वैली एंड वही अपना हड़प्पन, इंडस वैली वहाँ का आर्ट एंड कल्चर, एंड कमिंग ऑन टू मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, जो भी बीच की डायनेस्टीज थी वो सब मैंने कवर करी थी. आई मेड माई नोट्स, एंड यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स भी मैं देखता था. सो वहाँ से मैंने अपने नोट्स, रनिंग नोट्स भी बना रखे थे. जो मैंने मतलब आई हैड अराउंड 100 pages notes of ancient. Coming on to medieval उतना weightage नहीं होता है, but still I would suggest कि you should not leave medieval, because if you are leaving medieval then थोड़ा सा modern cover करने में problem होती है, because you don't have the base. So medieval मैंने किया था अपना विपिन सतीश चंद्रा से मैंने किया था, एंड उससे पहले मैंने NCERTs भी करी थी. सो उसके भी मेरे नोट्स थे, अराउंड 50 पेजेस के मेरे नोट्स थे. आई कवर्ड द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, देन आई कवर्ड द मुगल डायनेस्टी, देन आई कवर्ड द फॉल ऑफ मुगल्स, जो हमारे मॉडर्न में भी आ जाता है. और मुगल डायनेस्टी के बाद जो सू डायनेस्टी आई थी वो भी कवर किया था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो कवर किया था. एंड रिलेटेड जो अपना दिल्ली सल्तनत था मुगल से पहले, वो भी मैंने कवर किया था. सो बहुत कंसाइज वे में मैंने मेडिवल हिस्ट्री कवर की थी. अराउंड 50 पेजेस के मेरे नोट्स थे, 2 रीडिंग्स ऑफ द स्टैंडर्ड बुक, देन आई मेड माई नोट्स, रनिंग नोट्स, जो मैंने यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स देखे थे, जो फ्री लेक्चर्स होते हैं. आई डिड नॉट टेक एनी पेड क्लासेस, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज में था कॉलेज का. सो आई डिड नॉट फील दैट इट इज़ नेसेसरी. मैं खुद से कर पा रहा था तो मैंने किया. एंड इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो मैंने जयंत पारीक्षित सर के नोट्स मेरे पास थे, विच आई फॉलोड to till the like last day. Also I was completely dependent on his notes, and I was able to score around 90% marks in economics. 1-2 क्वेश्चन जो मेरी ही गलती से गलत हो गए थे वो बस गलत हुए थे. बाकी इकोनॉमिक्स आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट. एंड इफ यू टॉक अबाउट मैथ्स, सो ऐसा था कि इंडिया के बाद इंडिया के जो मेरे अटेम्प्ट्स थे आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड, आई couldn't join, so I switched humanities. तो इंडिया मैथ्स से मेरा टच खत्म हो चुका था. सो मैथ्स के लिए I had to work on my base again, because 2.5 years I was not in touch. So I picked RS Agrawal. I did it every chapter I did, because practice and calculation speed बढ़ानी थी. So I did every chapter. I did not leave any chapter. एंड उसमें अदर एग्जाम्स के भी क्वेश्चन होते हैं, लाइक कैट के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, SSC के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं. सो द बेस ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वास्ट इन RS अग्रवाल. सो मैंने वो किया. देन बिफोर एग्जाम जो अनुराग सर की वीडियोस रहती थी यूट्यूब पे ऑन द सीडीएस जर्नी चैनल इटसेल्फ अबाउट द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द मैथमेटिक्स क्वेश्चन, तो उससे मैंने किया.
एंड ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स भी जो सर बताते हैं वो भी मैंने फॉलो करी थी. सो मैथ्स मेरा वहाँ से कवर हो गया था. आई वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 90% मार्क्स इन मैथ्स ऑल्सो. एंड इफ वी टॉक अबाउट द रीजनिंग पार्ट, तो रीजनिंग के लिए काफ़ी यूट्यूब पे लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स डले हैं. मैंने वहीं से फॉलो किया था. सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं लाइक कैलेंडर, क्लॉक, मिरर इमेज एंड मिसिंग नंबर्स सीरीज, सो ब्लड रिलेशंस. तो ये सब मैंने यूट्यूब से ही किया था. लाइक हफ्ते में 2 या 3 बार आई यूज टू डू रीजनिंग प्रैक्टिस, तो वो वहाँ से कवर हो गया था. If we talk about current affairs, so current affairs is a major part of this exam of CAPF Assistant Commandant exam. And करंट अफेयर्स के लिए एक तो मैं डेली न्यूज़पेपर था ही. सो जो मेजर हेडलाइंस थी, आई वाज अप टू डेट विद दोज. एंड टू कवर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ CAPF एग्जाम, जो सीडीए जर्नी चैनल पे अनुराग सर की मंथली वीडियोस आती थी, जो अभी भी आती हैं. एंड तो वो मैंने कवर किया था. अराउंड 7 to 8 months की मैंने करंट अफेयर्स कवर करी थी फ्रॉम दोज वीडियोस ऑफ अनुराग सर ऑन द सीडीए जर्नी चैनल इटसेल्फ. So this was all about paper 1. If I talk about my strategy of paper 2, paper 2 I would say is the most important yet the most neglected part of the CAPF Assistant Commandant exam preparation, because students क्या करते हैं, they hardly give around 1 month or even lesser if we talk about paper 2, and they are कि यार कुछ भी लिख देंगे and we'll be getting average marks. But ऐसा नहीं है, because I know some of my friends, they were thinking they did excellent, above average marks. They were expecting around 110 marks also, some people were expecting, but they hardly got 60-70 marks. So I would say that one should be very sincere about paper 2, because it is like that part which can make or break your selection. If you want to get in the final merit list, then you have to get good marks, around 95 above marks you have to get in paper 2. So the strategy which I followed was around 200 marks का जो पेपर होता है उसमें, if I give a brief breakdown of the descriptive paper 2 of CAPF exam, then उसमें आपके 80 marks के essays होते हैं, 6 essays होते हैं, जिसमें से you have to do 4 essays, 20 marks each. Then arguments होते हैं 2, we have to attempt both, 40 marks के arguments होते हैं. Then comes report, 20 मार्क्स की 2 रिपोर्ट होती है, दोनों कंपलसरी हैं. एंड फिर कम्स अपना प्रेसी इज लाइक कि हमें एक बहुत बड़ा पैसेज होगा अराउंड 2.5 पेजेस का, और वी वुड से अराउंड 900 वर्ड्स 1000 वर्ड्स का होता है, जिसको हमें 1/3 में रिड्यूस करके लिखना पड़ता है. सो प्रेसी होता है 15 मार्क्स का. देन कम्स द अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन विच इज ऑफ 20 मार्क्स. देन इफ वी टॉक अबाउट the remaining part, that is grammar. 25 marks की English grammar आती है, which I think is the most important part in the paper 2, because the student which has prepared grammar religiously, वो आराम से 20, 22, 20, even बहुत लोग तो फुल मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं ग्रामर में, जो अलग उनका स्कोर हो जाता है. दे स्कोर अराउंड 100+ मार्क्स इन पेपर 2. सो ये था अपना ब्रीफ ब्रेकडाउन अपना पेपर 2 के बारे में. एंड इफ आई टॉक हाउ आई अप्रोच्ड माय पेपर 2, तो मेरा ये था कि फर्स्टली टू गैदर कंटेंट आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑफ वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो मैगजीन होती थी. One thing which you guys don't have to do is to look for resources to gather content for paper 2, because I'll be taking paper 2 classes. So I'll be making sure that you don't have to wander for content. You'll also be getting CAPF booster booklet, जिसमें और additional topics होंगे which you will read on your own, and उसके basis पे हम करेंगे essays and all the things of that. एंड मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ करी थी कि आई यूज टू मेंटेन अ डेटा बुकलेट एंड अ कोट बुकलेट. डेटा बुकलेट इसलिए, जो मेजर थीम्स होती हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डेटा न्यूज़पेपर में आया है, लाइक इतने होम मिनिस्ट्री ने इतने का एम रखा है मार्च 2026 का टू कर्ब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट. सो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स और डेटा पॉइंट्स होते थे उनको मैं रखता था अपनी डेटा बुकलेट में. एंड आई ऑल्सो मेंटेन द कोट बुकलेट. कोट बुकलेट में व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू राइट कोट्स,
like Instagram. Everybody scrolls Instagram, YouTube Shorts, everything like that. So उसमें अगर कोई अच्छा quote आ गया related to the related fields, like AI से कोई quote आ गया, जैसे today I was scrolling and I got a quote on AI. सुंदर पिचाई, गूगल CEO, उनका कोट था कि AI is probably the most profound thing that humanity is working on, and he believes that it is more transformative and more profound than even fire and electricity. So it is a very important quote जो मेरे को लगा on AI. तो अगर मैं प्रिपेयर कर रहा होता इस साल के लिए, तो आई वुड हैव रिटन इट इन माई कोट बुकलेट. सो ऐसे मैंने कोट बुकलेट बनाई थी अपनी, जिसमें हर थीम पे मेरे पास कोट्स थे, अराउंड 20-25 कोट्स अराउंड ईच. बिकॉज ऐसा नहीं है कि यू विल बी एबल टू रिमेंबर एंड यू विल बी एबल टू राइट कोट हर हिस्से में, बट अगर आपने किसी 2 या 3 में भी लिख दिया, सो योर द quality of the content which you have written in the essay that goes above average, and you will be getting good marks. And this was my strategy. Newspaper reading becomes very important for paper 2, because जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन वाला पार्ट होगा, जो प्रेसी आप लिखेंगे, उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए पड़ती है टू कट शॉर्ट द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, वो आपका आएगा न्यूज़पेपर से, खासकर जो ओपिनियन पेजेस होते हैं एंड योर एडिटोरियल पेजेस. दोज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पेपर 2 preparation, because you get to learn the basics of how to write sentence, how to frame paragraphs, and how to turn something, how to read between the lines. आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो you will start realizing in 2-3 months that you are able to understand जो उसमें लिखा भी नहीं है, अब उससे और in depth उसको समझ पा रहे हैं. So newspaper become very important in your paper 2. So this was paper 2. I'll be sharing tips of interview also, but this is not the right stage to share tips about interview. Further stages पे interview के लिए भी I'll be helping you. And if I talk about, since I'm the one who's taking your paper 2 classes in the upcoming batch, so what I have thought and I have planned is that we'll go by themes. सबसे पहले तो we'll cover the basics of every part of the paper 2, essay, argument, report, précis, and comprehension also. The basics हम कर लेंगे, like what should we write, how should we write, and what is the basic format, how much time should we devote. Everything related to that will be covered in the orientation lectures which I would take. Then we'll move, what we'll do is, because it would be an interactive batch, so what we'll do is, I have divided the paper 2 syllabus in major themes, because पेपर 2 एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है. इसमें हम ये नहीं कर सकते सिविल सर्विसेज जैसा ही है, इसमें डिफाइंड मेंस का सिलेबस नहीं है. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, जो किसी पे भी टॉपिक बन के ऐसे में आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा, एंड रिपोर्ट लिखने आ जाएगी. किसी भी टॉपिक पे, वो जनरल भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है. सो anything can be asked. So to cover this vast undefined syllabus, I have done द मोस्ट बेसिक थिंग. वो क्या है कि मैंने थीम्स में बांट दिया है और योर पेपर 2 सिलेबस. थीम्स क्या होती हैं? थीम्स आर द मेजर हेडलाइंस, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, लाइक इंटरनल रिलेशंस, लाइक अपना हेल्थ सेक्टर, लाइक अपना इंडियन सोसाइटी. तो ये इस गवर्नेंस हो गया एक, ऐसी मेजर थीम्स हैं. देन व्हाट we'll do is we'll cover every theme in very exhaustive pattern. हम एक बहुत exhaustive manner में इसको cover करेंगे. Every like major topics, major current affairs हम क्लास में ही कर लेंगे, जो भी पेपर 2 से related होगा. One thing I would notice, I will be covering the descriptive part of the syllabus. The factual part you'll be getting that in paper 1 classes जो हम बैच में कंडक्ट करेंगे. सो आपका पेपर 1 की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली बिकम द बेस फॉर पेपर 2, एंड जो और फैक्चुअल डेटा ये सब रहेगा, वील डिस्कस दैट इन द पेपर 2 क्लासेस. एंड फिर जैसे हमने एक थीम कर ली, सो वील नॉट वेट फॉर द एंटायर थीम टू गेट ओवर. around 2-3 days after we have started any particular theme, then हम करेंगे उस पे से हमने जो कवर कर लिया है उसमें what essays can be written. So I'll be discussing कि कैसे intro लिखेंगे, कैसे body लिखेंगे, कैसे conclusion लिखेंगे,
which how the code can be integrated in the essay, arguments कैसे लिखेंगे उन topics पे, and you'll be getting assignments also. Assignments जो आप लिखेंगे वो अपने mentor को भेजेंगे, आपको जो dedicated mentors मिले हैं आई बिलीव वो असाइन हो चुके हैं अभी तक आपको, सो उनको आप भेजेंगे, दिल चेक योर कॉपीज, आई ऑल्सो चेक सम कॉपीज एंड द डाउट्स विच आई टेक इन द क्लास, एज आई सेड इंटरैक्टिव होगा, सो यू कैन थ्रो योर डाउट्स इन द क्लास इटसेल्फ, क्लास में ही क्लियर कर दिए जाएंगे. इफ बाय चांस वो नहीं मैं ले पा रहा हूँ क्लास में, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑल्सो, मैं क्लास के बाद भी वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा. सो दिस इज हाउ आई विल अप्रोच पेपर 2 एंड entire CDA journey team is very much dedicated as for the upcoming CAPF batch, and we believe we'll give results. जैसे मैंने खुद को अपना रिजल्ट दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी खुद को अपना रिजल्ट दें. यू विल प्रूव योर सेल्व्स. मैंने प्रूव कर दिया है. नाउ इट्स यू. आई विल बी गाइडिंग यू 24/7 जहाँ भी आपको हेल्प लगेगी. नॉट ओनली फॉर पेपर 2, पेपर 1 में भी आपको हेल्प लगेगी, देन यू कैन आस्क योर डाउट्स, क्वेरीज, मैं उसमें भी हेल्प करूंगा. एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू ऑल्सो आई विल बी देयर विद यू गाइस. सो कंप्लीट सपोर्ट मेरा रहेगा. सो या, this was my background, my journey, and how I strategized my preparation and how I'll be helping you in your preparation as your mentor and faculty for paper 2. So, okay friends, this was Arshit signing off. Thank you.